Mr. Navneet Ravikar, thank you so much for coming to the Agri Today show. थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी। एग्रीकल्चर का ना एक बहुत जेनेरिक ऐसा एक व्यू है नॉन एग्री लोगों के लिए कि जब भी एग्रीकल्चर की बात करें तो उनके दिमाग में आता है एक फार्मर धोती पहना हुआ खेत में जा रहा है। बट इफ़ आई टेल एनी वन दैट यू बिलोंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, कोई बिलीव नहीं करेगा। You dress up well, you know how to talk, you know how to carry yourself, and I think this is something that people need to realize that over the period of time, over the past few years, the image of agriculture is, I think, changing. And आज की डेट में एक ट्रेडिशनल सेक्टर नहीं रहा है ये, मोर ऑफ एक वाइब्रेंट और एक न्यू इमेज बन रही है एग्रीकल्चर की। what is your take on that? So, Harris, agriculture is an aspirational sector now. Aspirational, absolutely. So, crores of Indians have huge aspirations for agriculture, and it's not only farmers. Agriculture sector is not only about, it's about the whole value chain. It's about farmers. It's about the seed manufacturers. It's about the fertilizer industry. It's about food processing industries, the primary processing units. So it's the logistics, the godowns, the cold chain. So it's a huge value chain that makes up the industry, Right. एंड जो हमारी इंडस्ट्री है और जो हमारा इमेज है फार्मर्स को लेके, वो स्टीरियोटिपिकल है. इट वाज मेड बाय left out by British, and which gave a image of farmer sitting with सर पे हाथ रख के वो पूरा सूखा पड़ा हुआ है और उसमें वो there is ऊपर चील उड़ रहा है, and that image. And then there is this image of Mother India, with the fact that हमारे फार्मर्स जो हैं वो खेत में जा रहे हैं, एंड हार्डशिप्स एंड एवरीथिंग. तो अब जो एस्पिरेशनल इंडिया है वो इट्स ऑल अबाउट चेंज, अबाउट मॉडर्ननेस, अबाउट यूनिकनेस, अबाउट इनोवेशन. एंड इनोवेशन इज समथिंग जिसपे ना पैसे का कंट्रोल नहीं होता. पैसे से इनोवेशन नहीं होता, दिमाग से होता है. और हमारे पास हर एक घर में और हर एक फार्मर जो हमारा है उसके पास अलग तरीके का इनोवेशन है. अगर आप अलग अलग जगह पे जाएंगे, अलग अलग फार्मर्स अलग तरीके की इनोवेशन करते हैं. आई थिंक दिस इमेज इज चेंजिंग एंड दिस विल चेंज वेरी वेरी फास्ट. बाहर से देखा जाए तो आपका जो काम है इट सीम्स वेरी फ्यूचरिस्टिक. एआई है, सैटेलाइट्स एंड एवरीथिंग. बट आपकी ये जो जर्नी है ये स्टार्ट कैसे हुई थी? लेट्स जस्ट गो बैक टू द टाइम वेयर इट ऑल स्टार्टेड. So it all started when I was doing my MBA, ओके. or even way back when I was doing my most probably my +2. So the idea of doing a business was always there कि मुझे business करना है. And बट एग्रीकल्चर में करना ये श्योर नहीं थे आप? नहीं, उसके बारे में बताता हूँ. उसके और पहले अगर जाते हैं तो आई कम फ्रॉम एसेंशली एग्रीकल्चर ओरिएंटेड फैमिली. ओके. मेरे दादाजी और उनके यानी ऑल माई फोर फादर्स वेर फार्मर्स. माई फादर इज स्टिल अ फार्मर, ऑल्दो ही इज अ सिविल सर्वेंट. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट civil servant in the whole, I think, district or village or whatever. We come from a very small village in Bihar. Okay. And हम लोगों का अपना खेत खलियान सब है. तो the idea of going and doing something for my for my background from where I came was always there. And the understanding that I should do something was in agriculture was something which was inherent from the beginning itself, when I was thinking that I have to do business. So I have never thought कि मैं agriculture करूँगा. I was always about the fact that business करूँगा with agriculture in the background.
you Okay. know. So the understanding of a farmerpreneur and an agripreneur was from the beginning itself. It's not something which came after my education or whatever. Okay. बट मूविंग फॉरवर्ड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जब मैंने MBA किया और जब मैंने इंजीनियरिंग किया, आई डिड माई इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. Okay. So the understanding of the technology, the understanding of the business of it gave a clear understanding as to where I wanted to go. So I started with insurance. Essentially, I started with insurance, wherein मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी में था. इफ्को टोक्यो वाज माय फर्स्ट जॉब एंड लास्ट जॉब एसेंशली. सो वहाँ से शुरू हुआ. बट फिर वही क्वेश्चन आएगा कि उसमें एग्रीकल्चर कहाँ से आया. सो उसमें हम फसल बीमा योजना से शुरू किया था मैंने. Okay. यू नो, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड. उस समय फसल बीमा योजना जो था वो बड़ा ही वो था, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस करती थी. गवर्नमेंट का उसमें कोई सब्सिडी नहीं था उस वक्त. और ओनली 2-3 कंपनीज वे आर डूइंग इट. बेसिकली एक अपनी AIC हुआ करती थी, वो करती थी. दूसरा हमारा जो इफ्को टोक्यो था वो करता था, और ICICI थी वो करती थी. बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेलिंग insurance to the farmer took us to cooperatives, the farmers, and to talk to them, understand their issues. It was only, I think, 2 or 3 seasons that I did. And the understanding that I got about the industry, about farmers, about their insecurities, कि अगर और उस समय जो था ना, जो प्रोडक्ट था बड़ा ही सिंगल लाइन था. तो कोई उसमें इनोवेशन एज सच नहीं था. उसमें बस था कि फसल बीमा है, इतना बारिश होगी तो आपको ज़्यादा हो गई तो अतिवृष्टि का मिलेगा, और कम हुई तो ड्रॉट का मिलेगा. बट प्रॉब्लम जो था वो बड़ा सिंपल था कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 स्टेशंस होते थे, और एक डिस्ट्रिक्ट में जो रेनफॉल होता है कभी इतना वो नहीं होता. क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. इट्स ऑलवेज हर एक गांव में तक में अलग अलग बारिश होती है. एक गांव में होगा, दूसरे में नहीं होगा. सो देयर वाज ऑलवेज दिस डिससैटिस्फैक्शन. और होता क्या था कि कोऑपरेटिव जो थी वो सोसाइटीज़ होती थी. सोसाइटीज़ फार्मर्स को प्रेशर करती थी, तुम करो, करना पड़ेगा एंड थिंग्स, एंड उनके खाते से कट जाते थे. तो उसी समय से फार्मर्स का जो थॉट प्रोसेस था वो समझ में आ रहा था कि दे वर नॉट वेरी सेटिस्फाइड एट ऑल विद द प्रोडक्ट, विद द अंडरस्टैंडिंग. तो वहाँ से फिर जब हम आगे बढ़े तो द अंडरस्टैंडिंग वॉज कि, एंड ऑब्वियसली अलॉन्ग विद बारिश बीमा योजना और फार्मर बेस्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के साथ साथ मैं कॉरपोरेट भी बहुत कर रहा था. सो द अंडरस्टैंडिंग वॉज टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड एवरीथिंग. वी कुड डू अ लॉट ऑफ वर्क. देन वी स्टार्टेड दिस अंडरस्टैंडिंग कि चलो लेट्स हैव अ इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी, बिकॉज वी वांटेड टू मूव आउट एंड गो. एंड देन सेकेंडली आई ऑल्सो वांटेड टू स्टार्ट अप विद अ रिस्क मैनेजमेंट कंपनी. ओके, सो उस समय तक द अंडरस्टैंडिंग वॉज कि हम कॉर्पोरेट को सर्व करेंगे. इट वॉज नॉट फार्मर्स. ओके, सो व्हेन वी स्टार्टेड दिस, वी स्टार्टेड डूइंग, वी गॉट इनिशियल सक्सेसेस एज वेल, फेलियर्स ऑल्सो. एंड जो लीड्स कनेक्ट अभी है, उस समय लीड्स फिनस्टॉक कंसल्टेंट हुआ करता था. Okay. So it was a risk management firm, and we used to do insurance in Leeds Insurance Broker and Leeds Finstock Consultant में हम risk management करते थे, fire audit, electrical audits and industry audits and risk management audits and all. It was very very high end, Okay. 2012 में थोड़ा सा disillusionment हुआ. The understanding was कि रिस्क मैनेजमेंट एज अ कॉन्सेप्ट वॉज थोड़ा सा नया भी था इंडिया के लिए, और पीपल वेर नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. उनको लगता था कि अच्छा प्रीमियम कम कर दो और वो कर दो, बट रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना. व्हेन यू से कि नहीं आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाने हैं, आपको स्प्रिंकलर लगाना है,
So you analyze and then give this thing, yeah, policies ऐसे होने चाहिए, whatever. So people started to, when I started to talk to people, I could understand that they did not value our feedback. Then what we started to do was we started to look out and to my old love, which was basically agriculture, agri-tech. And we started to talk to people, to insurers, and we started. तो उस समय तक MNAIS करके जो था, Modified National Agriculture Insurance Scheme, वो चलता था. तो we started to talk. We started an audit also. अपने मन से कर दिया, बात कर लिए, करना शुरू किया. Then we started to talk to farmers. तो उस समय तक the gap was huge between what MNAIS या जो गवर्नमेंट स्कीम था वो देना चाह रही थी और क्या फार्मर का थॉट प्रोसेस था. कुछ पता ही नहीं था किसी को. They did not know what insurance was. The insurance penetration was almost nil. Okay. Insurance penetration in crop. And basically वही था कि वो एक तरीके का धंधा था. Basically कि अब किसी तरीके से हम फार्मर से प्रीमियम ले लें और फिर उसको क्लेम न दें. और बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग वाज कि फार्मर को इंश्योरेंस का पैसा उसके बैंक अकाउंट से कट जाता था, उसको पता भी नहीं होता था और उसको क्लेम भी नहीं मिलता था. तो एंड एक तरीके से स्कैम नहीं कहेंगे, दैट्स अ वेरी हार्श वर्ड टू से, बट नॉट अ स्कैम, बट बेसिकली unethical to some this thing, and basically non-scientific. There was no way. देखिए कोई भी चीज़ अगर फार्मर को आप नहीं समझा पा रहे हैं तो वो डिस्ग्रंटल्ड होता है और उसको वो डिस्ग्रंटलमेंट कैरी ऑन होता है. तो वो प्रॉब्लम देखने में आया हमें उस वक्त कि दिस वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट actually satisfying the farmers and they were not aware as to what it is for. Right. So then we started going to the insurers and there was new insurance company which was made, which was SBI General Insurance, which came into as a crop insurance में पहली बार आई. So we went to them, gave presentation. They were very futuristic. They wanted to do something new. So we started a combined program of awareness and penetration for insurance in rural market with them. That's how we got into crop insurance. Okay. And then when we worked with them, we worked with SBI, we worked with Bajaj, we worked with 3-4 other insurance companies. Then we started to collect data from 2013. The data collection started then. The understanding of agri-tech started then. And that is where it all started. That is a very motivational story, I must say, sir. तो starting के days में entrepreneur बनने का सबसे बड़े challenges क्या थे आपके लिए? देखिए जिस इंडस्ट्री में मैं था, you are also a young entrepreneur, so I think you will also face it. उम्र एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, you know, because people like grey hair. You know, they don't listen to you because they don't expect expertise from a youngster. You know, so I that am was facing that problem. Yeah. So your gray hair counts a lot. So gray hair means experience. Right. And that is what the understanding was then, and it still is. There is a kind of Indian society में कुछ ज़्यादा वो है. It's very deep rooted. Right. तो वो problem हमें बहुत ज़्यादा आई. And secondly, obviously, आपने भी young start किया था काफी. I started when I was 29 years old. Young. Yeah. Right. So it's like 16 years, 17 years I had started. So it was a problem. So एक तरीके से young होना plus we started in a industry which was very old style. इंश्योरेंस एक बड़ा ही थका हुआ सा सेक्टर माना जाता है, So to understand insurance, to make people understand, to let them understand that I can handle their portfolio, right, or my team can handle. My team average age was somewhere around 30. Okay. So to let people understand that we will be able to do some serious job with them was one problem. Secondly, when we used to go to the farmers or to the villages to do outreach programs or whatever,
there also we used to face the same issue, you know, because तो उसको एक एक मेजर प्रॉब्लम तो वो है, दूसरा होता है कैपिटल, यू नो. जिस इंडस्ट्री से मैंने शुरू किया था, द होल थिंग वाज, हमने ये डिसाइड किया था, आई माई सेल्फ एंड रिचा माई वाइफ, वी स्टार्टेड टुगेदर. सो द आइडिया वाज कि हम पैसे नहीं मांगेंगे किसी से भी, नॉर फ्रॉम माई फादर नॉर हर फादर. सो वी स्टार्टेड विद नील कैपिटल. जो भी हमारी सेविंग्स थी 4-5 लाख की, उससे शुरू किया था. वी टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट जिस इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं वो कैपिटल ओरिएंटेड नहीं है, इट इज़ मोर human capital oriented and basically related to what I think and envisage. Mostly about selling the idea. Selling the idea. And it was essentially core understanding consultancy की थी. तो which was also a very, it is also a fool's this thing. अभी अगर किसी स्टार्टअप से आप बोलोगे तो उसको भी वो नहीं समझ में आएगा. तो और उस समय जो environment था वो इतना स्टार्टअप ओरिएंटेड भी नहीं था. तो we jumped into it and then started thinking. So and I think anything that you are very passionate about, आप सोचते ही वैसे हो, you know, you take the plunge and then you start to think. So otherwise you never take the plunge. Right, sir. Absolute. हर किसी की लाइफ में जितने भी मतलब जैसे आई कंसिडर यू अ सक्सेसफुल मैन, एंड जो आपकी जर्नी रही है, ऐसे बहुत सारे लेसन्स होंगे जो आपको मिले होंगे, एंड आई बिलीव 1 या 2 ऐसे कुछ मेंटोर्स होंगे जिनसे आपने कुछ सीखा होगा. तो ऐसे क्या लाइफ, पहला सवाल कि ऐसे कौन से मेंटोर्स या मेंटोर हैं आपके, और उनसे आपने क्या क्या सीखा? सो एक तो पहला करेक्शन ये है यार इसकी, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ सक्सेसफुल मैन येट. ओके. आई थिंक देर आर ह्यूज थिंग्स टू बी अचीव्ड. ऑफ कोर्स. And I think I have just started. I think it's मैं इस तरीके से बोलना चाहूँगा कि I'm taking first steps. There is a huge potential in what we are doing, and I believe we can change how India is now. That is what we think. Right. And I think the time is here and we will do it, but अभी बहुत अचीव करना बाकी है. जो दूसरा क्वेश्चन आपका है अबाउट मेंटोर और मेंटोर्स, सो लाइफ में हर एक पड़ाव पे आपको मेंटोर्स मिलते हैं, यू नो, एंड एवरीबडी अराउंड यू एक्चुअली gives you motivation, you know. And I think for me, one person who has stood by me always, or rather 2, and there are 2 women basically. One was my sister, who is no more now, and my wife. So my sister, so because my father was a civil servant, he used to get transferred a lot. So we used to live in Ranchi. So living there in one place and then studying there. So we and obviously because हम लोग civil servant वाली फैमिली से थे, because he was an IPS officer, तो there were 2 problems. एक तो threat perception, दूसरा also the fact that we came from a very middle class family. So we had nobody but to each other to support, you know. Right. And we used to support each other, and she was a very big motivation from where I have reached, and what I could do in life. Secondly, my wife, because she is the support that I have, and she's my sounding board, you know. So she is very important for, and she is not a mentor. She's a mentor and a supporter, and my biggest critic. And last but not least, one person who is my mentor and guide is my father, who is showed me with his what he has himself achieved in life. So
I think he's a motivation, uh, and somebody to learn from. You must have interacted with the youth a lot, because अभी एग्रीकल्चर में यूथ उतना नहीं है, बट हाँ कोशिश है। काफ़ी यूथ अभी इस टाइम पे स्टार्टअप्स में आ रहे हैं, काफ़ी यूथ काफ़ी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। एनी वन पर्सन हु हैज़ इम्प्रेस्ड यू रिसेंटली, और एनी न्यू टेक्नोलॉजी और एनी न्यू स्टार्टअप दैट हैज़ इम्प्रेस्ड यू रिसेंटली? So one person who has impressed me recently is you. थैंक यू सर। So I feel you have a good potential to grow, थैंक यू and सर। I think you have a long way. थैंक यू Okay. थैंक यू। And I have met a lot of youth who have, you know, because we hire a lot of people from colleges. So and most of them are agriculture graduates, and they come from agriculture background as well. So there are different people with different capabilities. Abhi as of now, अगर हम सर I'd like to change my question. ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर मैनेजर पोस्ट पे हैं या थोड़ी हायर पोस्ट पे हैं, कभी कभी फ्रेशर्स उनसे बेटर काम कर जाते हैं? बिल्कुल। अभी जैसे हमारे पास, अभी मैं फॉर एग्जांपल भी बताऊं कि हमारे वी वर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर, वी वर्क ऑन एआई मॉडल, एंड वी वर्क ऑन रिमोट सेंसिंग। सो हमारे फील्ड में बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड पे they move around, talk to farmers, they get feedback, and they try to click photographs and try to understand what is growing. So they are all agriculture graduates. Right. So there are people sitting in office who are essentially doing remote sensing, and they know nothing of the crop. And these guys are now coming back to office, and अब वो remote sensing कर रहे हैं, along with the crop understanding. तो ग्राउंड का नॉलेज है उनको। एग्जैक्टली, एंड वो बेसिकली एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं जो अब रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अस, बिकॉज उस एस्पेक्ट में क्या होता है कि यू डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन एज टू व्हाट what agriculture is and what crop when, the phenology, the sowing cycles and all, उसको already understanding है। तो अब हमारे जो लोग हैं जो ग्राउंड पे हैं, जो बहुत यंग हैं, यानी कि दे आर जस्ट आउट ऑफ ग्रेजुएशन, एंड दे हैव दैट मोटिवेशन एंड दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग दैट अब हमें, तो मैंने इसको चेंज होता देखा है विद टाइम। व्हेन आई यूज्ड टू हायर पीपल इन अराउंड से 2017-18, बहुत मुश्किल होती थी किसी को समझाना कि आपको करना क्या है, एंड दे वुड नॉट। सबसे पहले तो हायरिंग में से इशू ये हो रहा था कि the agriculture student would refuse to go to the field. Why was that? They were all, their understanding of agriculture was essentially sitting in the office and doing some Excel. Okay. So this was a problem when we started and when we started to hire. But धीरे धीरे करके we could see that the change has come, wherein the agriculture graduates are now more tech oriented, they are more hands on, and they are moving on to the ground. तो ये चेंज मैंने देखा है लास्ट 3-4 years. सर ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था, बट दैट हैपेंड 60 years ago. आज की डेट में आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा रेवोल्यूशन आने के चांसेस हैं, या किसी टाइप के रेवोल्यूशन की इस टाइम पे नीड है? नीड है, रिक्वायरमेंट है, और हो रहा है. दैट इज डिजिटल ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट, and digital AI revolution. So many of our viewers are non-agri people. So would you like to explain what it is? Yeah, so आपने एग्री स्टैक के बारे में सुना होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, डिजिटल एग्रीकल्चर इंडिया कर रही है जी. ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों कर रही है. द अंडरस्टैंडिंग इज, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो हमारा एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी टू इंक्रीज the productivity, okay, to increase the production.
बट अब हम उस स्टेज में जहाँ पर हमारी प्रोडक्शन ठीक है, वी आर सेल्फ सफिशिएंट, बट हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पर अभी एक तो हमें, जैसे मैंने बताया, हम अब एस्पिरेशनल इंडिया है, वी आर एस्पिरेशन फार्मर्स। अब हमें आगे बढ़ना है यहाँ से। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे सर पे एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है, वो तलवार है क्लाइमेट चेंज का, यू नो। सो देयर वी हैव टू मेक मोस्ट ऑफ द सिचुएशन दैट वी आर इन, and we have to also do the risk management against the climate change that is happening, and it is not happening, it is there, everything is now affected by climate, and we are seeing the effects in the production also. So now what is required is to understand the crop suitability, the soil suitability, the climate resilient crop and crop patterns, to understand how to grow, when to grow and how to grow in a different way. अगर आप फार्मर से बोलोगे ये चीज़ तो वो बोलेंगे अरे हमें तुम सिखाओगे क्या उगाना है, कब उगाना है। तो हम ये नहीं बता रहे कि आपको क्या उगाना है, कब उगाना है, आपको हम बता रहे हैं कि ये सिचुएशन है ग्राउंड पे और ये सिचुएशन आ सकती है। सो द प्रेडिक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग टू कम एंड ऑन दैट बेसिस व्हाट टू डू नाउ is what we are trying to. So जो ये अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा क्रॉप कहाँ पे उगाना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ है कि क्रॉप पैटर्न चेंज हो गया है, द सीजनल पैटर्न्स हैव चेंज्ड, आपने बहुत सारा ओवर कल्टीवेशन हो गया है, मोनोक्रॉपिंग हो गई है, सॉइल डिग्रेडेशन हो गया है। तो ये सब चीज़ को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, हम किस तरीके से ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या उगाना है, so that the soil sustainability happens, the rejuvenation of soil and happens, and also the crop is grown properly and it is also nutritious. So the understanding is more of how to do it, and in the way that it has because of the changes that has happened in last 60 years. So अब ना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपना सोच बदलना पड़ेगा, मिक्स्ड पैटर्न, मिक्स्ड क्रॉपिंग पे जाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, एंड टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी it has to be uniform and it has to be very very precise. वो डिजिटल ग्रीन रिवोल्यूशन एंड डिजिटल ग्रीन AI रिवोल्यूशन की बात जो मैं कह रहा हूँ वो होना है. वी हैव टू क्रिएट अ मॉडल दैट प्रिडिक्ट्स accurately our yield, that predicts our risks properly, that predicts diseases precisely, and that also predicts market linkages. The whole solution from खेत से kitchen should be there. It has to happen. अगर हम ये सब चीज़ एक साथ नहीं कनेक्ट करेंगे तो हम ये रिवॉल्यूशन में पीछे रह जाएंगे. एंड दैट इज़ वेयर वी हैव टू स्टार्ट टू bring in agri-techs, and we need to bring in innovators, and we need to bring in scientists. So this is one. Secondly, there is a white revolution too that is required along with this. आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे केवल एग्रीकल्चर से. हमें अपने फार्मर्स को एम्पावर करना है विद animal husbandry part of it. We need to if we have to bring our farmers out of that poverty, he needs to know and he needs to move towards cattle and to earn from it, क्योंकि उससे आपको साल भर का आमदनी हो सकता है. और तीसरा जो रिवॉल्यूशन है जो आ रहा है और आएगा वो है न्यूट्रिशन revolution. That is something which is aspirational India wants. We need nutrition. We require nutrition. We need nutritious and healthy people. We need a nutritious food on the plates of our population. Okay, so we need to grow that food which is good, which is nutritious, which does not have pesticides and insecticides as part of its this thing. And we should move from eating non-nutritious food to nutritious food. Absolutely. So that is where we have to. So these three things are, these three revolution together
will make us a number 3 or number 2 economy in the world by say 2047, which is envisaged by our Prime Minister. सर सरकार ने काफ़ी स्कीम्स लॉन्च करी हैं फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर में, बट एज वी ऑल नो फ़िलहाल कुछ टाइम से फार्मर्स एंड सरकार का जो बातचीत है वो ठीक नहीं है। आपका क्या टेक है इस पे? इज़ इट बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग इनफ, और इज़ इट बिकॉज द फार्मर्स आर आस्किंग फॉर मोर? सो इसमें मेरी ना ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरीके से है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसी सेक्टर का, तो आपके लिए एक फ्लिप साइड होता है जो कि अच्छा, देयर इज अ बैड पेन एंड देयर इज अ गुड पेन. So when the aspiration is a good pain, and what we are going through is actually a good pain, or a kind of a labor pain wherein we will get a good child of development out of it. So what we are experiencing now, जो government का issue है कि अब उनको aspirational farmer से जूझना है, क्योंकि farmer अब इससे नहीं खुश है कि आपने मुझे सम्मान निधि दे दिया, या आपने मुझे PMFME का योजना मेरे नाम पे दे दिया, या मुझे AIF में कुछ वो I can open it up. That is done. That is already there. So now his aspirations is now at a level where he says कि where is the market? Give me the market. कहाँ है market? कहाँ है, बेचूं किसको? अच्छा, मैं अगर बेच दूंगा तो खरीदेगा कौन, कितने का दाम में खरीदेगा? So subsidy is something which is a double-edged sword, and government also knows. The only thing is that अब जो फार्मर है उसको भी पता है, जो फार्मर प्रेन्योर है उसको पता है कि सब्सिडी तो मैं ले ही लूँगा, वो तो मुझे लेना ही है, बट मुझे और क्या गिरेगी गवर्नमेंट, और मुझे अगर गवर्नमेंट दे रही है तो अगर उससे मुझे फ़ायदा है अभी का है या आगे भी मिलेगा. सो द अंडरस्टैंडिंग इज़ कि ही इज़ नॉट थिंकिंग अभी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सोच रहा है, और उसको ये समझना है कि मुझे अगर ये सब्सिडी मिल रहा है और मुझे मान लीजिए ऋण माफ़ी है वो मिल रहा है, तो ऋण माफ़ी इज़ something which started with one government, went on to another government, but all the governments now know that it actually backfires every time, and the whole banking industry is suffering because of it. तो the understanding is कि आप फार्मर को कितनी सब्सिडी देंगे और कहाँ तक ले जाएंगे. आप उसको स्वायत्त बनाना चाहते हैं, आप उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, आप उसको एस्पिरेशनल बनने से रोकना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट को मानना और डिसाइड करना पड़ेगा. और इसके लिए आई थिंक आवर गवर्नमेंट इज कमिंग आउट विद देयर ओन सॉल्यूशंस, एंड वी विल हैव टू bring in private sector in this, which the government is also doing, but it will take its own course, because जैसा मैंने बताया कि ये एस्पिरेशनल फार्मर्स हैं, और ये जब तक ये ना इट्स लाइक अ लेबर पेन, इट विल गो अवे इन सम टाइम, बट इट विल टेक इट्स ओन पेन अलॉन्ग विद इट. दर्द तो होगा. बट इस चीज़ से मुझे एक और क्वेश्चन आया दिमाग में. आपने बोला कि सब्सिडीज़ का फ़ायदा जो बड़े फार्मर्स हैं वो उठाते हैं, एब्सोल्युटली राइट. तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो इसमें पीछे रह जाते हैं. इसका क्या सोल्यूशन है, मतलब इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, एक समय था जब छोटे फार्मर को बड़ा फार्मर ही लोन देता था जी, फसल भी वही उससे खरीदता था जी. धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो रहा है. अब जो बड़ा फार्मर है वो लोन लेता था, अब धीरे धीरे छोटे फार्मर्स के पास ट्रिकल डाउन होके धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो रही हैं. लोग अब जो भी माइक्रो फाइनेंस की कंपनीज आई या बैंक्स आया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का रेगुलेशन आया, ये सारी चीज़ें हुई, तो धीरे धीरे ट्रिकल डाउन हो रहा है.
बट जो चीज़ 100 साल पुरानी है, और अदर इवन ओल्डर देन दैट, ब्रिटिश के टाइम से चली आ रही है, कुछ इल्स जो हैं सोसाइटी के, वो इमीडिएटली ख़त्म नहीं होंगे. एंड बेसिकली वो ट्रेडिशनल जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है एग्रीकल्चर का, उससे बाहर निकलना और उससे ये कहना कि हम बीच से ब्रोकर्स हटा देंगे, आड़ती हटा देंगे और हम डायरेक्ट बिजनेस हो जाएगा. तो ये चीज़ें होने में टाइम लगता है, एंड इट विल टेक टाइम फॉर थिंग्स टू improve. It will not happen by one regulation change. अभी आप MSP के बारे में भी सुन रहे हैं, अभी आप ऋण माफ़ी की भी बात अलग अलग स्टेट में सुनने को आता है. बट दिस डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स. अभी आप ये देखिए कि द 20 or 30% people who actually get crop loans are not small farmers. They are all either big or middle level farmers. So this penetration has to improve. तो इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा with a caveat ये होना चाहिए कि भाई इस नंबर ऑफ और इतने बड़े ज़मीन के होल्डिंग के नीचे वालों को ही ये फैसिलिटी मिलेगी, उससे नीचे वालों को नहीं मिलेगी. अभी क्या था कि चाहे इंश्योरेंस हो या लोन हो, दोनों में ही बड़े फार्मर्स जो हैं वो उसका फ़ायदा उठा रहे थे. बट ये धीरे धीरे चेंज होगा और हो रहा है, बट इसमें गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी पड़ेगी. एंड की भी है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना के दे हैव ट्राइड टू ब्रिंग इन मोर FPOs का जो फॉर्मूला आया और FPOs बने, तो उसमें छोटे फार्मर्स को फ़ायदा हुआ और हो रहा है. बट वी विल हैव टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस एंड वी विल हैव टू कीप सपोर्टिंग इट. एंड इसमें PPP मॉडल पे वर्क हो या फाउंडेशंस और जो हमारे NGOs हैं उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा फॉर दीज फार्मर्स टू कम इन दिस थिंग. बिकॉज देखिए क्या है कि हम बहुत ही इंजीनियस पॉपुलेशन है, वी आर वेरी इंजीनियस एंड वेरी जुगाड़ू लोग हम लोग, है ना. तो हमें ये पता होता है कि हम कैसे लोगों का फ़ायदा उठा सकते हैं. एवरीबडी इज़ अ बिजनेसमैन. सो आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम उसे बेवकूफ़ बना रहे हो. जिसको जहाँ बिजनेस का फ़ायदा मिलेगा वो करेगा. द अंडरस्टैंडिंग इज वी हैव टू हैव दैट इंटरवेंशन टू safeguard that person who is in the bottom of the pyramid. Right. उसके लिए हमें बिजनेसेस को लाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस को लाना पड़ेगा, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को लाना पड़ेगा. जब हम लोग सब एक साथ काम कर रहे होंगे तो ये लोग उस फोल्ड में आएंगे. एंड जिस दिन ये होगा उस दिन हमारा जो सॉल्यूशन है उसका सक्सेस होगा. Farmer suicide is a very very big topic of our country, and mostly the reason is poor financing. लोन रिपे नहीं कर पाते, इस वजह से मोस्टली फार्मर सुसाइड कर लेते हैं. इसके पीछे गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाए या फिर और प्राइवेट सेक्टर को बेटर करना चाहिए, क्या आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, फार्मर सुसाइड्स इन जनरल इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर द सोसाइटी. And farmers suiciding is basically committing suicide. Basically, is a blot on our यानी कि किसी भी इंडियन के उस पे साइकी पे एक blot है. And the understanding that who is responsible for it is a very very complicated question. It's not the government. It may be a part of the government machinery who is involved. It's part of our policy which is responsible. It is also in some extent it's very controversial to say, but it may be the farmer himself who is responsible. But the understanding is we can blame anybody and everybody for it. The understanding is solution kya hai, Right. How do we come out with a solution which actually solves the issue to some extent? We start to reduce the stress
and to reduce the issues which cause the farmers to commit suicide. That is something that we need to discuss and understand. And what we could see and understand from our own experience and understanding of this area where this happens frequently, or or in the areas where this happens, हमारा ये मानना है कि technology can be a very big intervention. It's something which can help the farmers in a big way. And technology के साथ साथ जो financial intervention है वो दोनों प्लस मार्केट लिंकेज, जब ये तीन एक साथ काम करेंगे तब जाके उस फार्मर को फायदा होगा. देखिए इसके पीछे ना, यू नीड टू गो टू द रूट ऑफ द कॉज. द रूट कॉज इज दैट देर इज अ विशियस सर्कल द फार्मर गेट्स इनटू. वो पैदा वो करता है जो लोग खरीदते हैं, राइट. देन होता क्या है कि भेड़ चाल में वो जो इस साल सबसे ज़्यादा बिका, वो नेक्स्ट ईयर सारे फार्मर्स वो उगा लेते हैं. फिर उसके बाद उसको उसकी वैल्यू नहीं मिलती है. उसके लिए वो ऑलरेडी लोन ले चुका होता है. अब आज के डेट में हम लोन, पहले लोन तो वो सूदखोरों से लेता था या वहाँ पर जो होते थे उनसे, जो बड़े फार्मर थे उनसे लेता था. बट अब देर आर MFIs who are also lending. But the interest rate are still very high. It ranges from even 25% to even 42% as in there. तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर से बर्डन खत्म हो गया. दूसरी चीज़ क्या है कि जब वो होता है तो उसके पास कोई प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है जहाँ पर वो जाके स्टोर कर सके. देयर इज़ नो स्टोरेज टू बाय इट, एंड देयर इज़ नो गवर्नमेंट टू एक्चुअली सपोर्ट हिम when actually there is over production. Right. तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ना ये तीन चीज़, एक तो टेक्नोलॉजी, दूसरा इंटरवेंशन जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, एंड थर्ड मार्केट लिंकेज टू कनेक्ट इट टू द इंडस्ट्री एंड द प्रोसेसिंग यूनिट्स. दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, एंड बेसिकली resolution will come with time. Along with that, there has to be a dedicated helpline for farmers who are in stress, because कोई भी mental health condition requires support and somebody to talk to, right. So there has to be a mental health line facility for the farmers who are under stress. It can be a state helpline, or it can be a national helpline as well. But it's high time that we have one. I'm so sorry to interrupt you. I personally believe that in India, people don't take mental health very seriously. बाहर फॉरेन में थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है लाइफ का. लोग हफ्ते में 1-2 बार थेरेपी लेते हैं, सेशंस लेते हैं. यहाँ पे अगर कोई थेरेपी लेना चाहे तो उसे पागल बुलाया जाएगा. तो अगर ये सब शुरू हो भी जाए, आई डोंट थिंक पीपल विल टर्न टुवर्ड्स दैट, बिकॉज एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ है लोगों का कि थेरेपी पागल लोग लेते हैं. ये दिस इज ऑल्सो समथिंग which needs to change with time, right. है ना. एंड बेसिकली the first step towards it is to understand that there is a problem. पहले तो ये समझना कि अगर फार्मर सुसाइड कर रहा है तो उसका रीज़न आप फाइनेंशियल बता सकते हो, आप उसका स्ट्रेस बता सकते हो, आप कुछ भी बता सकते हो, बट अल्टीमेटली इट्स मेंटल हेल्थ. सो अगर हमारा ये अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है और गवर्नमेंट के पास है और NGOs के पास है, तो फर्स्ट लेट देम टॉकिंग अबाउट इट सॉल्व्स समथिंग टू सम एक्सटेंट. कम से कम वो आपसे बातें कर रहा है, वो आपको बताएगा कि क्या इशू है. 50% प्रॉब्लम वही सॉल्व होती है. और दूसरी चीज़ ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग, हम इतने सारे एड्स बनाते हैं और टीवी पे चलाते हैं, RBI के एड्स होते हैं, अबाउट फ्रॉड एंड एवरीथिंग, एंड इतने सारे होते हैं. तो व्हाई कांट देयर बी अ एड फॉर mental health and for the safety and mental health of the farmers. Let's have an awareness about it. And the fact that you talk to us, you understand, you ask for help, no? अगर आप ये मान लो कि हर साल अगर 600 फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, वो 600 फार्मर में से हम लोग इतने सारे CSR में बैठे हैं, कॉरपोरेट्स, इतने सारे लोग बैठे हैं,
इफ देर इज, अगर एक फार्मर ऐसी गुहार लगाएगा कि मेरे को प्रॉब्लम है और मैं इस तरीके से, तो देर आर लोकल पीपल हु कैन हेल्प, देर आर नेशनल एंटिटीज दैट कैन हेल्प. So we as a country are failing our people if we let our farmers die by suicide, man. It's waste of resources. It's waste of everything, whatever we are put into, and it's totally, failure of our whole system. आपने बताया कि आप बचपन से ही आप श्योर थे कि आपको बिजनेसमैन बनना है. नाउ यू आर द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लीड्स कनेक्ट. इज दिस वेयर यू सॉ योरसेल्फ? Yes. यस. बट आपने साथ में ये भी बोला था कि आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ सक्सेसफुल मैन येट. Yeah. सो यू सॉ योर सेल्फ हियर बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड येट. No, I saw myself heading an organization, ओके. but I don't think I've took my organization to where I want it to be. यू आर वेरी यंग सर. Yeah, but even then, जहाँ पे आपने जितने टाइम में ये चीज़ शुरू करी है आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, एंड आपको लगता है वो टाइम में आप इसको वहाँ लेके जा पाएंगे जहाँ पे आप सोच रहे हैं? हैरिस, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, टाइम इज़ बड़ा ना रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. टाइम इज़ अ वेरी रिलेटिव कॉन्सेप्ट. समटाइम्स इवन 2 seconds आर very long time, and sometimes 20 years are less. राइट. And और आपको नहीं पता कभी भी कि किसका समय कब आएगा, so it's better to make use of what you have, and don't let your dreams be dreams. Make it happen now. Work Don't towards wait for today, tomorrow, or ever. Do it now. That is what the understanding is. Don't wait for tomorrow, because you don't know if tomorrow comes or not. I believe this message is for the youth. Yeah, if you have to do something, if you believe in your dreams, do it now. Don't do tomorrow. As a CEO and chairman, आपके अकॉर्डिंग AI कब और किस कैपेसिटी में वर्कफोर्स को टेक ओवर करेगा? एंड क्या आपकी कंपनी AI इंटीग्रेशन की तरफ जाएगी या AI टेक ओवर की? हम तो जा चुके हैं इंटीग्रेशन की तरफ. इंटीग्रेशन की तरफ. We at one time we had some 700 people on the ground. Now we have around 120. ओके. So my AI model predicts around with 95% accuracy without people on the ground. 95% accuracy. Yes. तो जो हम प्रेडिक्ट करते हैं यील्ड, वो मेरे ग्राउंड का बंदा नहीं बताता है, मेरे AI मॉडल बताता है. सो अब इसका कवीट बताता हूँ आपको. द कवीट इज दैट AI will never be able to replace people. It will be able to replace processes. So प्रोसेस चेंज होगा. प्रोसेस में आपको AI आ जाएगा, जहाँ पर रिडंडेंसी है ऑफ पीपल, बट जहाँ पर ह्यूमन फैक्टर है, जहाँ पर ह्यूमन माइंड की बात आती है, जहाँ पर इमेजिनेशन की बात आती है, दैट्स वेयर. सो माई AI मॉडलर इज अ मैन, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, राइट? तो AI मॉडलर को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो. और या जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो फिनोलॉजिस्ट है, जो एग्रोनॉमिस्ट है, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो. दैट इज समथिंग विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. AI will replace the process redundancy. बट AI बहुत ज़्यादा इस पॉइंट पे जॉब्स को अफेक्ट कर रहा है. आपके अकॉर्डिंग ये सही चीज़ है, गलत चीज़ है? बिकॉज बहुत सारे ऐसी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आई कांट रिकॉल द नेम्स, बट US में ऐसी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपने हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया और रोबोट्स और AI के साथ अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं. देखिए, जब असेंबली लाइन आया था और जब ऑटोमेशन आया था, जब सेमीकंडक्टर आया था, जब मोबाइल फ़ोन आया था, जब इंटरनेट आया था, हर समय, हर एक एज में
there is this understanding that अब तो it will end the way, or it will be end of the way for the way it is, you know, कि अब तो नौकरी गई. जब इंडिया में मॉल्स बन रहे थे, बिग बाजार बन गए थे, तो किराना स्टोर तो 20 साल पहले ही ख़त्म हो गए थे. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ये कभी नहीं होगा कि विल देर इज़ अ टाइम व्हेन वी वोंट रिक्वायर human brain or humans. Absolutely. Now there is this understanding that yes, there are redundancies which from where people should move on, and they should move on and they should upskill themselves. The youth will have to upskill themselves, Right. because there are very many things that don't require. इसको आप इस तरीके से देखो कि you are made for bigger things. Some things are not required for people. अब आज की डेट में हम देखते हैं कि there are gig workers who are actually delivering food. You think that is a right deployment of resources? It's a waste of human potential. Absolutely. अगर आज के डेट में ड्रोन्स अलाउ हो जाएं तो व्हाट हैपेंस टू दिस गिग इकोनॉमी? इनका क्या होगा? तो ड्रोन्स तो रिप्लेस करेंगे इनको ना. बिल्कुल. आने वाले टाइम में ये सब कुछ काम ड्रोन्स ही करेंगे. आपको होम डिलीवरी ड्रोन से होगा जी. तो व्हाट विल हैपन टू दीज पीपल? सो द अंडरस्टैंडिंग इज कि जो प्रोसेसेस रिडंडेंट हैं न्यू टेक्नोलॉजी से रिप्लेस हो जाएंगे. दैट इज हाउ इट इज. दैट ये तो दस्तूर है. बिल्कुल सही बात है. टेक्नोलॉजी आती रहती है, प्रोसेसेस चेंज होते रहते हैं. लोग पहले सामान लेने दुकान तक जाते थे, अब ब्लिंकिट आ गया है, 5 मिनट में सामान आ जाता है. बिल्कुल. तो ऐसे ही. बट अगेन ये चीज़ अगर नौकरियां खाएगा, एआई जैसे बहुत इस टाइम पे नौकरियां खा रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लोग मजबूर हो जाएंगे अपने पोटेंशियल रीच करने में, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे? देखिए, जब भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत बड़ा वो बनता है, माहौल बनता है. तो ये अभी माहौल बना हुआ है. एआई इज का माहौल बना हुआ है. एआई से बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस होगा नहीं. देर इज दिस अंडरस्टैंडिंग. देखिए, अभी आप जनरेटिव एआई की बात कर रहे हो, हम लोग बहुत आगे निकल गए. जनरेटिव एआई के बाद ह्यूमन इन द लूप एआई है, कॉजल एआई है. सो ये सब चीज़ एक ही चीज़ इंडिकेट करता है कि देर इज गोइंग टू बी ह्यूमन इन बिटवीन which actually manages it. So I don't think it actually is going to affect, it will affect the way we live, and it will affect the way we do the job, but it is not a bad thing. It is exactly in the same way, a nano technology is not a bad thing. It was never a bad thing. गवर्नमेंट यूथ को वर्कफोर्स में इन्वॉल्व करना चाह रही है इस पॉइंट पे, एंड कर भी रही है. एज अ CEO, एज अ चेयरमैन, एज अ पर्सन हु इज़ इन द प्राइवेट सेक्टर, आपको लगता है कि यूथ इस टाइम पे लीडरशिप पोजीशन पे होना चाहिए, और क्या वो अच्छे से लीडरशिप पोजीशन को हैंडल कर पाएंगे? बिकॉज इंडिया में सर एक माइंडसेट है, जैसा आपने बताया था, दैट ग्रे हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे. बट ये चीज़ सही है या गलत है? In present day and scenario, जहाँ पर हम there is a boom of startups, I think the thought process is changing to although हमारा जो society है वो बड़ा entrenched है towards this of understanding of gray hair and the understanding of experience in age, but I think it is changing. मेरा मानना है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, और यूथ इज़ कमिंग अप इन अ बिग वे. देर इज़ दिस चेंज इन परसेप्शन ऑल्सो,
and the perception is coming not only from the government but from the private sector also. And because अभी हमारा जो population है, I think we are the youngest population in the world as of now. हमारा जो demography है वो अभी बिल्कुल high potential demography है. तो हमें ना एक तो ये thought process सोच के और समझ के इसको change करना पड़ेगा कि the youth will have to is going to be the agent of change, and that is where we have to bring in the government, the private sector, the academia together, and to bring them together to understand that youth is the future, and we need to give them more responsibility, more more leeway, more and experience is something which comes with responsibility. If you give responsibility, the experience comes. It doesn't come with age. So you think people in India are ready to accept CEOs or people on leadership roles who are just, let's say, 25, 26, If they don't 30? accept, they will not be there in the system. They had to accept me, right? They are accepting you also. So the idea is that the Indian youth is in the face. Right. And it's there. You will have to face it. So it's वैसे ही है कि भाई औलाद है तो है, वो तो जो करना है उसको तो करना ही है ना. तो आप उसको किस डायरेक्शन में ले जाओगे? तो I do you want him to be driving a bike and delivering food, or you want him to innovate and go to a farm and use a drone to understand what is the position of the crop that is there, and to correctly understand as to what kind of chemical to use to protect that crop. So we will have to be more accepting of youth. अभी स्टार्टअप्स का एक इवेंट हुआ था जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर पीयूष गोयल सेड दैट हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो मोस्टली सिर्फ खाना डिलीवर करने पे फोकस कर रहे हैं. मुझे आपकी बात से ये चीज़ याद आई. एंड एग्रीकल्चर में अभी तक एक भी स्टार्टअप नहीं है अकॉर्डिंग टू मी जिसने जो यूनिकॉर्न बनी हो. तो कहाँ लैग कर रहे हैं हम? बिकॉज स्टार्टअप क्या ऑल्सो डू यू अग्री विद वॉट द ऑनरेबल मिनिस्टर सेड? बिकॉज एज ऑफ नाउ स्टार्टअप्स एक्चुअली में जो एक्सेल कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो जैसे ब्लिंकिट हो गया, डिलीवरी है, स्विगी है डिलीवरी है, जोमेटो है डिलीवरी है, मोस्टली समवेयर अराउंड ऐसे ही हैं. तो क्या स्टार्टअप्स बेटर कर सकते हैं और एग्रीकल्चर में कहाँ लैग कर रहे हैं जो स्टार्टअप्स वहाँ नहीं पहुँच पा रहे जहाँ उन्हें होना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले दे देता हूँ. पीयूष जी ने जो बोला मैं उससे एग्री नहीं करता. ओके. Any innovation that creates jobs and gives a meaningful life is an innovation, and it is adding up to our economy, So I don't believe in that statement. I think he was meaning to say something else. He was actually comparing two things. तो वो he was actually comparing India with China. No. वो तो था, बट वो एक गिग इकोनॉमी और फूड डिलीवरी सिस्टम को डीप टेक से कंपेयर करना चाह रहे थे. दोनों अलग चीजें हैं. दोनों बहुत अलग चीजें हैं, एंड दे आर नॉट कंपेरेबल, राइट. दूसरी चीज क्या है कि जो एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ने क्रिएट करा और जो एस्पिरेशंस और अंडरस्टैंडिंग और जो पॉलिसी बनाई गई पिछले 10-12 साल में, ये सारे स्टार्टअप उसी की देन है, राइट. एंड सिमिलरली एग्रीकल्चर में भी जो स्टार्टअप्स आए, चाहे देहात आया या क्रॉपिन आई, बहुत सारे ऐसे आए जो दे हैव एक्चुअली अचीव्ड समथिंग. वी आर ऑल्सो देयर आर others as well, although we are not unicorns obviously. But what I would want to say is ki and we are all in some way or other working on deep tech, मेरा understanding
ये कहता है, और मेरा जो जवाब है आपके क्वेश्चन का वो ये है कि जो रीज़न है कि हमारा कोई यूनिकॉर्न नहीं बना है, उसका रीज़न ये नहीं कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है या द स्टार्टअप्स आर नॉट देयर. द स्टार्टअप्स आर देयर, बहुत स्टार्टअप्स हैं. बहुत हैं. एंड वी विल सी in 2 years a unicorn or 2 coming out very very soon. Are you sure about that? I'm very sure. I'm very sure. And Any particular organization that comes to your mind कि ये इसके अंदर potential है अभी 1-2 साल में यूनिकॉर्न बनने का? Leeds Connect. That is a fair answer. And I think there are 2-3 more very potential ones which I will not name, but they may come out. And okay. I think what I feel is that देखिए अब environment बना है. We are all working on deep tech. We are all working on agricultural deep tech. You know, there is a different. It's a very very new field. You know, तो उसका final product आने में time लगेगा. It's not something which you get. Research एक different ball game है. You know, रिसर्च में आपको यूँ पैसे डाले वो वहाँ से निकल आया वैसे नहीं होता है. रिसर्च इज समथिंग दैट यू विल हैव टू इन्वेस्ट, यू विल हैव टू यू नो सिट टाइट एंड वेट. तो मेरे हिसाब से वेटिंग ओवर हो गई है. एंड वी विल सी वेरी सून सम वेरी गुड यूनिकॉर्न्स कमिंग अप. एंड एक कॉन्सेप्ट और आपको ये समझना पड़ेगा, जो ये अंडरस्टैंडिंग है अबाउट फंडिंग, अबाउट यूनिकॉर्न, वो यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट ही मुझे बड़ा अजीब सा लगता है. यू नो, आई डोंट थिंक यू नीड to divest or to bring in equity to become a unicorn. Okay. You know, you can be a unicorn, and instead of getting into equity, you can go to the share market. You can become a limited company and start with an IPO. But isn't it risky? No. मेरे हिसाब से IPO लाके अगर आप में पोटेंशियल है और अब अगर पब्लिक मेमोरी में आप जा सकते हैं एंड आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं जिससे ग्रोथ दिखती है, इसी वजह से इसको रिस्की बुलाया, बिकॉज पब्लिक जाने के बाद आपकी कंपनी की जो वैल्यू है वो पब्लिक डिसाइड करेगी, फिर आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है. तो आपको इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये है, वहीं पे रिस्क भी इन्वॉल्व होता है. रिस्क है, बट मेन चीज़ ये है कि आपको अपने काबिलियत पे पूरा भरोसा होना चाहिए. और दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक गेटिंग इनटू दैट इक्विटी गेम एंड वैल्यूएशन गेम इज़ मोर रिस्की दैन गोइंग क्विक फॉर एन IPO, यू नो दैट. बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इक्विटी का जो गेम होता है वो बड़ा होता है, बिकॉज देर इज़ दिस एंड आई हैव सीन वेरी फ्यू स्टार्टअप्स, more than 5 to 10 startups whom I could see that they started with some very very important innovation. In agriculture, in agri-tech, in fintech, which actually moved and pivoted into something totally different because जो investor आया उसने उसको उस तरफ घुमा दिया. अच्छा, इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है. इंटरफेरेंस ऐसी होती है कि वो आपको मूव नहीं करते. बायजूस के साथ क्या हुआ, अब बायजूस देखो, इट्स अ वेरी बिग केस स्टडी टू गो थ्रू. तो इंटरफेरेंस ऐसा शुरू होता है कि आप देख सकते हो. There is a startup I would not name, which actually started with a very good example of value chains. You know, अब वो फल बेच रहा है. There is one startup which started with very good vegetable value chain में, but वो ultimately अब दूध बेच रहा है. तो what I am saying is कि the understanding is कि आप का मॉडल प्रोमोटर जो है वो बताता है. मेरा इनोवेशन अगर है तो हम कैरी we get carried away by the money that we are getting, by the valuation that we are getting. So target is not my innovation now, my valuation becomes my target. So that is where the problem is getting into the Indian startup ecosystem. So आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे. अगर सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो आप इनोवेट नहीं कर पाओगे. अगर आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं, देयर इज अ बिग चांस कि आपका बेस बदल दिया जाएगा. आपको बोला जाएगा कि मुझे अभी डाइवेस्ट करना है, आप इसमें पिवोट करो, आप फैक्ट्री लगाओ, आप प्रोडक्शन करना शुरू कर दो.
तो what happens is that you don't get that innovation to work with you, and that is where the whole thing You goes lose wrong. the purpose of your organization. You lose your innovation, you lose your purpose, and you lose where you want to go in the going forward. Now, this is a controversial question. Do you think India is actually progressing, or is this all just an illusion? I think India is not progressing, it is galloping. Okay. Yes, and I believe if everything goes well and ऊपर वाले की कृपा रही तो we will be a superpower. We have that potential. सबसे बड़ा contribution इसमें किसका रहेगा? Youth का. The innovation that comes from that demography that we have, and the creativeness of our people. आपको लगता है यूथ अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर पा रही है ढंग से? देखिए, यूथ को डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन के लिए देयर आर इनफ जो इकोसिस्टम बना है अब, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी में हो, चाहे क्लीन टेक में हो, चाहे हाइड्रोजन में हो, या उस तरफ चले जाइए जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में या व्हाटएवर, हर जगह पे there is this ecosystem getting created, which adds up to the capacity wherein they can be utilized. The idea, वहीं पे उनको direction देने की ज़रूरत है. That is where the policy and the government needs to focus basically, कि कौन से potential areas हैं जिसको हमें forward ले जाना है. जैसे in times to come, clean tech is going to be very 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 important, and essentially the idea of connecting the dot. So the fact is कि from not only to जो circular economy का concept है, वो support करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तभी जाकर ये डायरेक्शन मिलेगा यूथ को. तो आपकी जैसी एग्री फिनटेक कंपनी जब रूरल फार्मर्स की हेल्प करने जाती है तो आप सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? एंड डज द गवर्नमेंट हेल्प यू और डू दे इंटरफेयर, या आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बैरियर्स क्रिएट करते हैं? नो, वी डोंट फेस कोई ऐसा बैरियर नहीं है गवर्नमेंट की साइड से. से? नो, देयर इज़ नो बैरियर. जो हम सबसे बड़ा चैलेंज फेस करते हैं when we go to rural market in fintech domain is basically अगर वो नया मार्केट है तो first of all to gain confidence in what we are delivering to our to the farmers. So सबसे पहले तो the awareness is a very big problem. तो awareness करना पड़ता है सबसे पहले, and we get the government is essentially an enabler in that way. Basically वहाँ पर जो local ऑफिसर्स होते हैं कृषि विभाग में, और वो लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं, प्लस द लोकल बैंक जिनसे हम काम कर रहे हैं, तो वो भी अपना इंटरेस्ट शो करते हैं. तो दिस इज समथिंग वेर इन देर इज़ अ कंबाइंड एफर्ट, एंड इसीलिए अवेयरनेस में हमें मदद मिलती है, बिकॉज अलोन वी विल नॉट बी एबल टू डिलीवर. इट इज़ अ बिट ऑफ अ टफ जॉब to do it, because the concept is different. To let them understand if the technology is good, or if the technology can be accepted or not, it is something that needs to be the farmers need to be made up aware of. So now we move on to the last phase of this podcast. It is called the rapid fire round. अच्छा. You just have to answer in one word, या जितना छोटा हो सके जवाब. Done. We have 7 questions. Number one is आपकी hobbies क्या है? Reading. Reading. Any physical hobbies? कोई sport पसंद हो आपको? I do yoga. Okay. क्या आपको लगता है कि money is equal to happiness? Money is a hygiene factor. It's not happiness at all. It can contribute to the happiness. hygiene factor है, होना चाहिए. होना चाहिए. But होना चाहिए बस. इट शुड बी देयर, बट इट्स नॉट हैप्पीनेस एट ऑल. नो. ओके. आपकी लाइफ की बेस्ट एडवाइस आपको क्या मिली और किससे मिली है?
मेरी लाइफ की बेस्ट एडवाइस मेरी सिस्टर ने दी थी, दैट यू नीड टू मूव ऑन. दैट वाज क्वाइट डीप. या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप विश करते हैं आपने पहले सीख ली होती? एनी लेसन, एनी क्वालिटी? स्विमिंग. स्विमिंग? आई डोंट नो हाउ टू स्विम स्टिल. दैट वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड आंसर. अगर आपको लाइफ रिपीट करने का मौका मिले, मतलब आप वापस से मान लीजिए 12th में हैं अब, तो आप अपनी लाइफ सेम तरीके से जीना चाहेंगे जैसे अभी आपने जी है, या एक डिफरेंट डायरेक्शन लेना चाहेंगे? I think I would live the same way I Live the did. same way. Yeah. So you're pretty much satisfied how your life turned out. Not satisfied. How your life turned out. Yeah. It's Yeah. a long way Yes, to yes. go according to Yes. you, but you're satisfied with how it turned out. Yeah. Okay. That is something which I think I'm going by one word आगे बोल रहा हूँ, but the idea is that what we have lived with, whatever mistakes we have done, ये आपके consciousness या आपके आत्मा की learning के लिए, you know, and this learning cannot be undone. Okay. Right. So you need to make mistakes. Everybody does, and you learn from it. The best thing you can do is learn from them. Yeah. आपके लिए गुड लाइफ का क्या मतलब है? Good life का मतलब है to sip tea with my children and my wife. Okay, it's that simple. That simple. आपके पेट पीव्स क्या हैं? ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ें जो आपको इरिटेट करती हैं? If somebody talks in a high tone, Okay. that irritates me. This is something that you cannot tolerate. No. Okay. Now the rapid fire round is done. All my questions are done. Just one thing. What is one advice that you would like to give to the youth of this country? The one advice that I would give to the youth of the country is to live, to dream, and to achieve. All right. Thank you so much, sir. Again, thank you so much for coming here. And I'm sure that the youth and all my viewers will learn a lot from this episode. Thank you again. Thank you so much, Alex.